Hi guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another very exciting video. So this video has been on my list for almost a week now, and I don't know why was I just not making this video, but then something just clicked me and I knew that no matter what I have to sit down and have to talk to you guys related to this video. So in today's video we are going to talk about how do you deal with loneliness, how to enjoy your own company, and what things you can do that makes you a really you. So without any further ado, let's get started. Starting with the matter of the fact is that I also stay alone. It was around 6 to 7 years back जब मैं ऐसे घर छोड़ के तो नहीं आई थी. Like I did my 11th 12th also in Delhi NCR. फिर मेरा 4 साल college था. Then I had 2 years of office. So it's almost about 6 to 7 years that I have been living alone. So the first point we are going to talk about is let people think what they want to think. Get rid of misconceptions. Because you know what, when I started to hang out alone या फिर मैंने जब अकेले रहना शुरू किया तो all the things that used to come in my mind is जो हमें बहुत ही बचपन से या whenever I was in a growing stage ये सुनते आ रहे थे कि अकेले मूवी देखने कौन जाता है, या फिर अकेले कौन ट्रैवल करता है, या फिर अकेले कैफे में कौन जाता है, अकेले जाके कोई खाना पीना कैसे कर सकता है, अकेले मूवी देखने कौन जाता है. भाई ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो क्योंकि आपको हर वक्त हर टाइम किसी ना किसी की ज़रूरत है. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. एंड व्हेन यू गेट रिड ऑफ ऑल दीज मिसकंसेप्शंस एंड दैट्स व्हेन यू गो टू द पॉइंट टू yeah, I mean that is find your thing, find what you really want to do, what makes you happy and what makes you a really you. So now you know what, your thing can be anything. मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज़ होगी, वो कोई भी आपकी चीज़ बन सकती है. फॉर एग्जाम्पल you can read, you can write, you can just stare at objects, you can just stare at people, just stare at the animals, you can do even meditation, you can do even yoga, या फिर you can even go to cafes, you can go to shelters, you can just to peace your mind, or just to relax, just to enjoy with people. Just you can go to any orphanage, or for that matter of fact you can just binge watch something. Also it can be to make a new friends. You can even do stitching, या फिर you can even make any of your hobby. You can even learn something. You can do sketching, you can do art, paint, art and craft. Anything can be your thing, and that only comes when you step out of your comfort zone, when you get rid of those misconceptions, and that's when you find your thing. Now as per me, what is my thing is just that sometimes I just sit, whether on a chair or whether on a bed, I just take a sip of coffee, or I even drink sometimes some soft drinks, and I just stare at people. I just stare at different things, and several thoughts just keep coming and popping up on my mind, and then I think अच्छा ये ऐसे है, ये वैसे है. And then when I just stare at things, and when I just self analyze myself, and when I just talk to myself, that's when I get different perspectives of life. And that is one thing when no one can judge you, because that time is solely your time. No one judges you, no one says you anything, and जो आपका मन करता है वो आप बिना किसी परवाह की कि लोग क्या सोचेंगे, you can do it. For example, अगर आप किसी वेकेशन पे जा रहे हो, आप कभी किसी ट्रिप पे जा रहे हो, या फिर सोच लो कि आज आप बस अपने दोस्तों से मिले आज, ठीक है, तो आपका मन कर रहा है तो कॉफ़ी पीने का, लेकिन समवन या एनी अदर पर्सन सेज कि नहीं यार कॉफ़ी नहीं पीनी है, कुछ और करते हैं. एंड देन भी से अच्छा तेरा वो करने का मन है, हाँ चल ठीक है वो भी कर सकते हैं. बट प्लीज़ गेट रिड ऑफ दिस. ज़रूरी नहीं है जैसा अगला बंदा सोचे वैसे ही आपको करना है. अगर आपकी खुद की कंपनी रहेगी, सो यू कैन डू दिस. मेरे को कॉफ़ी पीनी है, हाँ तो मैं पीती हूँ, मैं खुद बनाऊंगी, या तो मैं खुद कैफ़े जाऊँगी. यू गो टू अ कैफ़े, यू जस्ट ऑर्डर अ कॉफ़ी, यू जस्ट टेक अ बुक, just read, and yeah, that is when you enjoy your own company. Okay, so the next thing which we are going to talk about is read or write. Now I know it is very optional, and बहुत ऐसा वेग सा टॉपिक है सबके लिए, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको रीड करना नहीं पसंद, जिनको लिखना नहीं पसंद, दे जस्ट डोंट लाइक इट. बट आई थिंक बहुत लोग बहुत बारी ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत चीज़ें ज़िंदगी में एक बारी तो ट्राई ज़रूर करनी चाहिए. लाइक अगर बंजी जंपिंग हो गई, या फिर ऐसे स्कूबा डाइविंग हो गई, या कुछ भी आपको ज़िंदगी में एक बारी ज़रूर ट्राई करना चाहिए. सो एज पर माई एडवाइस, आई थिंक आपको रीड एंड राइट करना भी एक बारी ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग जिसमें आपको किसी की इंडल्जेंस की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट यू
यू एंड जस्ट ओनली यू स्पेंड योर टाइम विद योर सेल्फ। जस्ट जो भी आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि आज मैंने क्या किया, मुझे क्या आज अच्छा नहीं लगा, या फिर आने वाले कल में मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ या देखता हूँ, या फिर मुझे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अचीव करनी है, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, या मुझे कौन सी चीज़ें किस टाइम तक अकम्प्लिश करनी है, ये सब यू कैन राइट इट डाउन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रीड करते हो या राइट करते हो तो आपके बहुत से जो इमोशंस हैं वो आप एकदम पॉप कर देते हो पेपर पे। अगर आपको किसी चीज़ से बुरा भी लग रहा है, आपका दिल एकदम भरा हुआ है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, सो वेन एवर यू राइट इट डाउन ना, आपका दिल एक हल्का हो जाता है कि ठीक है, आई एम फीलिंग अ बिट रिलैक्स नाउ। एंड आई थिंक जब भी आप रीड एंड राइट करते हो तो उससे आप बहुत कुछ सीखते भी हो अपनी पर्सनल लाइफ में भी। नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर वांट टू टॉक अबाउट इज, आई थिंक बहुत लोग हंसोगे आप लोग जब मैं आपको ये पॉइंट बोलूँगी, बट आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ गेट अ डिजिटल डिटॉक्स एंड बिल्ड अ रूटीन। नाउ आई नो कि आप लोग सोचो कि हाँ ये वीडियो बना रही है, बना तो टेक्नोलॉजी से रही है, फ़ोन से रही है, और ये हमें कह रही है कि हम डिजिटल डिटॉक्स हो जाएं या ऐसे कर ले, बट जस्ट हेयर मी आउट वंस। आई थिंक डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डे टू डे लाइफ के लिए। जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजीज, आपका आईपैड्स हैं, या फिर आपका टैबलेट्स है, आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, या फिर कोई म्यूज़िक प्लेयर है, या फिर वो टीवी है, या कुछ भी है, प्लीज़ कीप ऑल ऑफ देम असाइड। ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट आप दिन के 10 मिनट ये करके देख सकते हो, एंड यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन योर सेल्फ। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आज की जनरेशन या अभी की जनरेशन कुछ ऐसी हो गई है कि मोस्टली बहुत लोग ना, स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया। लाइक मेरा खुद का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आई अग्री, क्योंकि ऑफिस भी होता है, फिर उसके बाद आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल, तो मेरा यूट्यूब पे अलग स्टफ डलता है, मेरा इंस्टाग्राम पे अलग स्टफ डलता है। सो फॉर मी आई थिंक डिजिटल डिटॉक्स इज़ अ मस्ट हैव थिंग एवरी। आप बस कुछ नहीं करो, आपने सारी टेक्नोलॉजी साइड पर रखे, बस आराम से बैठ जाओ, या फिर आप कुछ नई चीज़ सीखो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करो, कोई रीड करो, कुछ राइट करो, मेक न्यू फ्रेंड्स, गो आउटसाइड, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, या फिर आप कहीं बाहर गए, आप मान लो किसी कैफ़े वगैरह या किसी में गए, ठीक है, एंड यू आर रीडिंग अबाउट, यू रियली लाइक रीडिंग अ बुक, किसी और को आपने देखा कि वो रीड वही बुक कर रहे हैं, या आपको उनके बुक में कुछ ऐसे दिलचस्पी आ रही है, सो गो देयर, टॉक टू देम, हैव देयर व्यू। सो दीज आर द फ्यू थिंग जिससे आप अपने आप को भी जानोगे कि आप आज के ज़माने में एक्चुअली कहाँ खड़ा होते हो। क्योंकि जब आप किसी टेक्नोलॉजी से दूर हो जाते हो, देन यू एंड योर थॉट्स आर ओनली विद यू। और इसमें डिजिटल डिटॉक्स में ये नहीं बोल रही कि आप सिर्फ अपने साथ ऐसे टाइम स्पेंड करो, खुद को करो। आप अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनके साथ थोड़ी देर बैठो, थोड़ी गपशप मारो, टॉक अबाउट लाइफ, टॉक अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग और व्हाट दे आर फीलिंग, क्या एक्सपेक्टेशंस है, या फिर जस्ट जस्ट कम्युनिकेट। मैं ये बोलूँगी कि आपको दिन के 10 मिनट ज़रूर निकालने चाहिए अपनी सारी चीज़ों को साइड पे रख के, ताकि क्योंकि वो जो टाइम होना चाहिए ना, वो सिर्फ आपका आपके साथ होना चाहिए। यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, यू नीड टू सेट सम गोल्स, एंड यू नीड टू जस्ट स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। और ये सारी चीज़ें तभी आती है जब आपका मन एकदम ठहराव में होता है, एंड दैट्स व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ। इसलिए सारी की सारी चीज़ें साइड करके दिन के 10 मिनट ज़रूर निकालो जिसमें आप सिर्फ अकेले हो, एंड यू टॉक टू योर सेल्फ। एंड लास्ट, ये जो लास्ट पॉइंट है जो सबको ट्राई करना चाहिए आई गेस, इज़ जस्ट गिव इट अ शॉट। बिकॉज मुझे पता है बहुत लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पसंद होती, जैसे मैंने पहले बताया, हर किसी को पढ़ना पसंद नहीं है ना। मुझे पता है बहुत लोग ऐसे सोचेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, ये भाषण दे रही है, या आप लोग आए, आपने मेरी वीडियो देखी, आपको लगा हाँ ठीक है वीडियो ख़त्म हुई, ठीक है, हाँ हाँ देख लेंगे, कभी कर लेंगे, जब ऐसे कुछ लगेगा कि बड़े डिप्रेस हैं तो ये सारी चीज़ें कर लेंगे। वाई कल, डू आज ना, अभी करो। Just give it a shot. Go outside, buy a new stationery, buy a new paper, new pens. Try out new things that you have never done. And क्या पता वो आपका एक hobby या फिर वो आपका even a passion बन जाए. So just go out, chill, relax, talk to yourself, give time to yourself, and that's all. I think I need to have a communication with you. मेरे पास और भी बहुत pointers थे अभी कॉपी में लिखे हुए, but I think मैंने बातों में आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर कर दी हैं. Just that these are the few pointers that I would really wanted to share with you, and I hope कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से. Thank you for watching this video, and if you like this video, then you have to hit the like button, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Till then, bye, take care.